ओके, क्या नाम है धूपल, क्या नाम है दिया, रीड। ये हम लोग का पार्ट, कौन सा पार्ट हो गया? ये हम लोग का लेक्चर का 7th, आई थिंक दिस इज द 7th पार्ट वी आर डूइंग टुडे। So this is 7th part of हम लोग का ये build to build a fire, okay? And I think आज हम लोग का end हो जाएगा ये, तो let's see कितना टाइम लगता है। चलो start, दिया read जैसे तुम कल पढ़ रही थी। Everybody switch on your videos and audios. Pay attention. अभिचल, क्रिश and नवीन। Sir, read करें? हाँ start. He watched using a sense of vision in place of that of touch, and when he saw his fingers on each side the bunch, he closed them. That is, he willed to close them, for the wires were down and the fingers did not obey. क्या मतलब हुआ इसका? अब ये बता रहा है कि उसका सेंसेशन जो है वो हाथ से पूरा चला गया। His hands cannot feel anything. There is no sensation in the hand. ठीक है, जनरली क्या होता है जब हम लोग कोई चीज को ग्रास्प करते हैं तो हम लोग को एक तो सेंस मिलता है कि ओके आई हैव डन इट ना, क्योंकि हम लोग को एक तो माने फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर यूज्ड टू इट कि व्हेन आई जस्ट होल्ड माय फिंगर्स दैट मींस आई हैव ग्रास्प समथिंग, बट उसका वो चीज खत्म हो गया है। तो वो अब बिलीव कर रहा है अपनी आईज के ऊपर में, माने वो जब चीज को पकड़ रहा है तो माने उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। ओके, तो ही कैन सी इट, तो वो देखकर समझ रहा है कि ओके दिस इज द प्लेस, नाउ आई हैव टू जस्ट पिक इट अप लाइक दिस, बिकॉज ही कैन नॉट फील इट, so he is feeling by his eyes, माने उसका सेंसेशन जो भी उसको दिख रहा है that is through the eyes. Understood? सर यहाँ पे वायर्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पे वायर्स का मीनिंग, हाँ द वायर्स वर डाउन का मतलब यहाँ पर ये सेंसेशंस वर डाउन, माने उसका कनेक्टिविटी पूरा खराब हो गया यहाँ पे, he cannot feel anything. ओके सर, चलो आगे। He pulled the mitten on the right hand and beat it fiercely against his knee. Then with both mittened hands, he scooped the bunch of matches along with much snow in his lap. Yet he was no better off. And now what is After happening? ठीक है पढ़ो। After some manipulation. After some manipulation, he managed to get the bunch between the heels of his mittened hands. In this fashion, he carried it to his mouth. Now The what is ice happening? crackled. Wait. So explain करने दो। बोला he pulled the mitten on the right hand, ठीक है, and beat it fiercely against his knees. He's trying to shake his hand so that there can be some sensation in his hands. Then with both mittened hands, he scooped the bunch of matches along with some much snow into his lap. So he scooped का मतलब क्या हुआ? वो मैच स्टिक को ऐसा निकाल रहा है, he's picking up the match stick जो गिर गया नीचे, लेकिन उसके संग क्या है, स्नो भी आ गया, बिकॉज ही कैनॉट चूज, उसके फिंगर के अंदर में कोई सेंसेशन नहीं है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको की कोशिश, he cannot avoid it, वो उसको कर ही नहीं सकता because his fingers are not working, ठीक है। Then with both he scooped the bunch along with much snow into his lap. He was no better off. After some manipulation, he managed to get the bunch between the heels of his mittened hand. Heels का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, ओके। थोड़ा सा देर के बाद वो यहाँ से वो चीज को पकड़ने में कामयाब हो गया, और फिर उसने यहाँ से पकड़ के, तुम लोग के डेस्क के ऊपर में अगर पेन है, एवरीबडी, if all of you can experience this, do one thing, pick up pen, एक तो पेन जो तुम लोग के डेस्क में, उसको यहाँ से उठाने की कोशिश करो, एवरीबडी, just pick it up from this, like this, just pick it up like this, I'm saying, like this, yeah, from here, pick the pen from here. Arey Bikram, pick it up from here. What are you doing? So I cannot see your camera, that's why. You can't see my hand. Acha, like this. Like this, yes. Try to pick it up. Now you see how difficult it is. He's trying to pick it up like this. Okay. अगर तुम्हारे पास 4-5 पेन है तो उसको संग में रख दो। 4-5 पेन अगर वहां पर है तो संग में रख दो, और उसमें से एक पेन को उठाने की कोशिश करो। पेन, पेंसिल, कुछ भी वहां पे रख दो। Assemble it and then try to pick up one pen with it. Anyone you want. तुमको कितना डिफिकल्ट लग रहा है सोचो, इमेजिन करो वहां पर, है ना। तो उसके संग वही सिचुएशन हो रहा है, और तुम लोग तो ऐसा आर्टिफिशियल कर रहा है, उसको तो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका तो लाइफ एंड डेथ का मैटर भी है।
ठीक है। तो जैसे तैसे उसने वो पेन को ऐसे उठाया एंड देन उसके संग थोड़ा स्नो भी आ गया, बिकॉज ही कैनॉट हेल्प इट, थोड़ा स्नो भी उसके संग आ गया, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसको ऐसे करके लेकर, बाप रे, इट्स रियली डिफिकल्ट टू पिक इट अप, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। फिर उसने उसको उठाया और फिर उसको अपने माउथ के पास लेकर गया ऐसे। Now he wants to burn the matches with the help of his mouth. Okay. In this fashion, he carried it to his mouth. The eyes, यहाँ से पढ़ो. The eyes crackled and snapped when, by a violent effort, he opened his mouth. Can He anybody drew explain the- to me what happened here? हाँ शौर्य बोलो. नहीं सर, मेरे को पूछना था। हाँ पूछो. Scoop the bunch of matches. क्या? Scoop का क्या मीनिंग है? I can't hear you. Am I audible? I can't hear you, Shaurya. Can anybody hear Shaurya? Sir, I guess he's asking the meaning of scoop. Yes sir. अरे स्कूप नहीं होता, आइसक्रीम निकालने के लिए स्कूप होता है ना, माने जस्ट लाइक जब हम लोग आइसक्रीम निकालते हैं उसको स्कूप बोलते हैं, उसका स्कूप निकालते हैं. ओके, तो वो भी उसको गड्ढे से निकाल रहा है तो स्कूप कर रहा है उसको अंदर से ऐसे, माने फ्रॉम द बीनीथ, यू नो हाउ अ स्कूप Okay, sir. वर्क्स. Yes sir. तो ही जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम डाउन फ्रॉम द ऐसे बीनीथ से निकाल के आ रहा है, इसके लिए स्नो भी आ जा रहा है. ओके, क्योंकि सारा मैट्रिक sir. गिर गया ना स्नो के ऊपर में, तो उसको स्कूप कर रहा है, काइंड ऑफ अ स्कूप. चलो आगे. Ah, can anybody tell me what is happening in this line? The eyes crackled and snapped when a violent effort he opened his mouth. इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ हाँ प्लीज. सर मुझे लगता है कि सर वो जब उसने उठाया मैचस्टिक, तो वो आई थिंक अपने सर मैचस्टिक मुंह पे लेके आया और उसको ऐसे वो ऐसे मतलब जलाने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह के अंदर आइस आ गई. पता नहीं क्या हो सकता है. नहीं, थोड़ा सा तो 50% Sir. करेक्ट है. हाँ हाँ 50% ना सर जो आइस उसके फेस पे थी वो क्रैकल्ड हुई है। हाँ, उसका तो पूरा सील्ड हो गया ना, उसके बियर्ड में तो आइस लगा हुआ है, उसका लिप्स तो पूरा एकदम से जितना भी जो भी लिक्विड पार्ट है मुंह में वो सारा आइस हो गया है. तो उसने उसको माउथ में घुसाने की कोशिश की तो यहाँ का जो बर्फ है टूट गया. द आइस क्रैकल्ड एंड स्नैप्ड व्हेन अ वायलेंट एफर्ट ही ओपनड हिज माउथ. बहुत मुश्किल से मुंह खुला उसका मुंह ऑलमोस्ट पूरा सील्ड हो गया था. बेचारा क्या हालत हो गया इसका. और खा लो टोबैको, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा. ओके, कहाँ पहुंचे? हाँ चलो. Sir, पढ़े? हाँ He drew the lower jaw in, curled the upper lip out of the way, and scraped the bunch with his upper teeth in order to separate a match. He succeeded in getting one, which he dropped on his lap. He was no better off. He could not pick it up. Then he devised a way. He picked it up in his teeth and scratched it on his leg. 20 times he scratched before he succeeded in lightening it. ओके. नाउ यहाँ पर क्या हुआ, उसने बहुत सारे क्या नाम है जो स्क्रैप पूरा बंच जो है मैचेस के अपने मुंह में लिया, ठीक है, और अपर टीथ इन ऑर्डर टू, और अब एक उसमें से एक को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, माने समथिंग लाइक दिस. ओके, हमें थोड़ा सा एनिमेशन करना पड़ेगा. माने एक मैचस्टिक को अलग करने की कोशिश कर रहा है उसने, लेकिन वो एक मैचस्टिक को जब वो ट्राई कर रहा था टीथ से, वो भी आके उसके लैप में गिर गया. माने टाइम्स आर रियली ट्राइंग, ठीक है. अब उसका बेचारे का हालत बहुत खराब हो गया. तो फिर उसने क्या किया, he picked, उसको जो एक मैचेस गिर गया था मैचस्टिक, he picked it up with his teeth, और उस मैचस्टिक को वो अपने लेग पे स्क्रैच करने लगा. वो सल्फर होता है, थोड़ा सा भी हीट करने से उसमें आग लग जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली अपने लेग के ऊपर में उसको स्क्रैच करने लगा. मैंने बैठ गया, थोड़ा क्राउच कर गया और अपने मुंह के अंदर माचिस को लेके जलाने लगा, ठीक है. और वो बाद में वो माचिस जल गया, लेकिन डेंजरस पोजीशन है, प्रिकैरियस. चलो, एज इट फ्लेम्ड, यहाँ से पढ़ो. As it flamed, he held it with his teeth to the birch bark, but the burning brimstone went up his nostrils and into his lungs, causing him to cough spasmodically. The match क्या हुआ? fell into इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का? सर इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने मुंह में जब वो मैस्टिक चलाई तो फिर उससे उसने जब सांस ली तो उसका जो धुआं था सर मैस्टिक का
तो उसने उसकी वजह से कॉफ कर दिया और उसकी वजह से उसका मैच स्टिक बुझ गया। वेरी गुड। उसका जो धुआं था, जो मैच स्टिक का धुआं था, वो उसके नॉस्ट्रल्स के अंदर चला गया और उसको खांसना पड़ा। ही स्टार्टेड कफिंग। ठीक है, ऑब्वियसली जब वो कफ करेगा तो मुंह से निकल ही जाएगा। तो अब उसको सेकंड टाइम ये ध्यान रखना है कि एक बार देखो कितना प्रॉब्लम है। एक तो मैच स्टिक जल नहीं रहा है, जैसे तैसे मैच स्टिक जल गया तो उसका धुआं से उसको खांसी आ गया और उसको वो वापस गिराना पड़ा और वो बुझ गया। तो अब उसको नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, अगर वो किसी तरह से मैच को जला भी पाएगा तो ही उसको अवॉइड करना पड़ेगा वो स्मोक भी। समझ में आ रहा है उसका सिचुएशन कितना डिफिकल्ट है, बेचारे को दया आ रहा है किसी को? हाँ सर। नहीं हाँ सर। सर। थोड़ा सा दया आ रहा है ना बेचारे के, बेचारा बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन। चलो नेक्स्ट यहाँ से। The match fell into the snow and went out. The old timer on Sulphur Creek was right. He thought in the moment of controlled despair that ensured, after 50 below, a man should travel with a partner. अब अपनों को बुजुर्गों की बात याद आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना, मेरे को जब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं ना अभी, तो मैं बोलता सर आप लोग हमको इतना बोला पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। दो तरह के बच्चे मिलते हैं, एक वो होते हैं जो एकदम सक्सेस में है, वो लोग तो एकदम सर कैसे है सर, वो तो उतर के पैर वैर छुएगा सब कुछ है। और एक जो सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, वो आके क्या बोलते हैं, सर आपने कितना समझाया था मेरे को, पढ़ लो पर मैं आपकी बात नहीं सुना। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब इसको रह के उसका आदमी की बात याद आ रही है, सल्फर क्रीक वाले की, कि उसने बोला था कि जब टेम्परेचर 50 बिलो होगा तो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। पर ये तो उसको बोल रहा था वुमेनिश है, कावर्ड है, डरपोक है। अब इसको उसकी बात याद आ रही है कि कितनी बुरी तरह मैं फंस गया, काश मैं उसकी बात मान लेता। ओके, चलो यहाँ से। He beat his hands but failed in exciting any sensation. Suddenly, he bared both hands, removing the mittens with his teeth. He caught the whole bunch between the heels of his hands. His arm muscles, not being frozen, enabled him to press the hand heels tightly against the matches. Then he scratched the bunch along his legs. It flared अब into यहाँ पर क्या हो flame. रहा है, वेट वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने दोनों हाथ के, पहले एक हाथ से वो हटाया था ग्लव्स, अभी दोनों, मतलब डेस्परेट हो गया वो, सिचुएशन इज डेस्परेट नाउ। अब डू एंड डाई वाला सिचुएशन चल रहा है। उसने क्या किया, दोनों हाथ के मिटन्स हटा दिए। ठीक है, और जितनी भी मैचेस थी, जितनी भी मैच स्टिक्स थी, उसको एक संग पकड़ने की कोशिश किया। ठीक है, और क्योंकि उसका आर्म मसल्स अभी भी उसके कपड़े के अंदर में है, तो आर्म मसल्स अभी फ्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसने सारी की सारी मैच स्टिक को एक संग पकड़ लिया। समझ में आ रहा है बात को? डेस्परेशन देखो, अब एक एक करके नहीं चला रहा है, सारा एक संग ले लिया। ठीक है, और उसको दोनों हाथ में जोर से उसने पकड़ लिया। उसके बाद देन ही स्क्रैच द बंच अलोंग हिज लेग, पूरा का पूरा बंच को अपने लेग पे स्क्रैच कर दिया। और एक संग जब जलाएगा तो क्या होगा, जब हम 10-12 माचिस एक संग जलाएंगे तो क्या होगा, इट फ्लेड इनटू फ्लेम्स, पूरा आग ही आग हो गया। 70 सल्फर मैचेस एट वंस, एक संग 70 जला दिया, 10-20 नहीं, एक संग पूरा 70 का 70 सल्फर मैचेस हाथ में जला दिया। डेस्परेशन देख रहा है, हाउ डेस्परेट ही इज नाउ। माने वो दिन कितना उसको डर लग रहा है कि उसने पूरा जला दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। He kept his head to one यहाँ से। side to. तो यही से ना, there was no wind to blow them out. there was no wind to blow them out. He kept his head to one side to escape the strangling fumes and held the blazing bunch to the birch bark. As he so held it, he became aware of sensation in his hand. His flesh was burning. He could smell it. Deep down below the surface, he could feel it. The sensation developed into pain that grew acute. And still he endured it, holding the flame of the matches clumsily to the bark that would not light readily because his own burning hands were in the way, absorbing most of the flame. यहाँ पर क्या मतलब हुआ, तुम लोग कोई समझा सकता है मेरे को? बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, कोई बताएगा? अच्छा, इनफैक्ट यहाँ तक रीड करो, थोड़ा सा और रीड करो यहाँ से। द ब्लेजिंग मैचेस फेल सिजलिंग इनटू द स्नो,
but the birch bark was alight. Okay, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे. So who is going to explain me from here to here? किसी का हैंड देखा मैंने, 100 देखा. 100 के अलावा कोई और बैटिंग करेगा क्या? अकेला एक ही बैट्समैन बैटिंग करेगा इंडिया के लिए, तभी इंडिया का ये हाल हो रहा है. और कोई बैटर है? हाँ नवीन? यस सर, हम बोलते हैं। क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ है सर। हाँ तो सर, क्या मतलब है इस जैसे- सारे का? सर जैसे ही वो सारा मैच एक साथ जलाया तो उसको समझ आ गया कि एक सेंसेशन भी फील हुआ, साथ ही साथ अब उसको पेन भी फील हो रहा है कि उसका हाथ खुद जल रहा है। वेरी गुड. हाँ 70 मैचेस अगर एक साथ कोई आदमी जलाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली कितना भी ठंडा हो, हाथ भी जाएगा। जब आग लगेगा हाथ में तो उसका स्किन भी जलने लगा. माने देखो बेचारा इतना डेस्परेट हो गया, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा हाथ को. उसको पता है कि अगर मैंने पूरा का पूरा मैचेस पकड़ा हुआ है, अगर मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा? वो पूरी 70 की 70 मैचेस बर्फ में गिरेगी और सबकी सब बुझ जाएगी, कहानी खत्म. क्योंकि उसका तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. लेकिन वो बेचारा जलते हुए भी उसने कैसे ना कैसे वो बर्च का जो लकड़ी, वो जो बर्च है उसके पास उसको लेकर गया. ठीक है. लेकिन बाद में एट लास्ट व्हेन ही कुड नॉट एंड्योर नो मोर, ठीक है, जब उससे और सहन नहीं हो रहा था, उसने अपना हाथ हटा दिया. He jerked his hands apart. The blazing matches felt sizzling to the snow. सारी की सारी मैचेस कहां गिरी? स्नो के अंदर. लेकिन एक अच्छी बात हुई वहां पर. क्या? The birch bark was alight. वो जो बार्क है उसको उसने जला लिया. सक्सेस. बच गया बेचारा. क्या लगता है तुम लोगों को? नहीं, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उसके लिए तब भी ठीक हुआ। सर सही हुआ। सही हुआ. वो बार्च पे आग लग गया. जो उसको अल्टीमेटली करना था, भगवान ने उसकी सुन ली और वो बार्च पे आग लग गया. ओके. अब हम लोग देखते हैं आगे ये स्टोरी कहां जाता है. बड़ा मजा आने वाला है. और सब बोले कोई आदमी मर रहा है सर, आपको मजा आ रहा है? मत सुनो, बड़ा बुजुर्ग का बात मत सुनो, इसलिए. ठीक है. दब्बर. हाँ चलो यहाँ से. अब उसने क्या किया? जब वो बार्क जलने लगा, क्या किया? पढ़ो यहाँ से दिया. He began laying dry grasses and the tiniest twig on the flame. He could not pick and choose, for he had to lift the fuel between the heels of his hand. Small pieces of rotten wood and green moss clung to the twig, and he bit them off as well as he could with his teeth. He cherished the flame carefully and awkwardly. It meant life, and it must not perish. The withdrawal of blood from the surface of his body now made him begin to shiver, and he grew more awkward. A large piece of green moss lay on the little fire. He tried to poke it out with his fingers, but his shivering frame made him poke too far, and he disrupted the knuckles of the little fire, the burning grasses and tiny twigs separating and scattering. वेट. अब क्या हुआ यहाँ पर? कोई बताएगा? हेलो 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 हेलो. हेलो. Am I audible? यस सर. Yes, sir. थोड़ा बहुत नेट स्लो है, थोड़ा प्रॉब्लम नेट में. नहीं सर, ऑडिबल थे, क्लियर है. ओके नाउ व्हाट हैपेंड? टेल मी. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? उसका बेचारे का बाग तो जल गया. ओके अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, जल गया. ठीक है. और अब वो क्या कर रहा है? उसको इस फायर को मेंटेन करके रखना है. क्या करके रखना है? जला के रखना सर उसको. हाँ तो उसने क्या किया? अब वहां से वो ड्राई ग्रासेस को उठा रहा है और उसमें आस्ते आस्ते डाल रहा है. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया. क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ तो जरा. उसके संग सर क्या आ ये गया? जो गीला गीला वुड था सर, वो कैसे आग वो पकड़ेगा? मॉस, आई टोल्ड यू यस्टरडे ना, वो जो मॉस सर, है आपका दैट WhatsApp इज नॉट खुल गया. गुड फॉर द फायर. तो वो मॉस भी उसके संग जो उठा रहा है लकड़ी के साथ में, वो मॉस भी आ जा रहा है. ओके नाउ उसने बेचारे ने बहुत कोशिश की कि अपने माउथ से जितना मॉस को सेपरेट कर सके वो करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सारा तो सेपरेट नहीं हो रहा है और उसको ठंड भी लग रहा है बहुत जोर. फिर क्या हुआ? अचानक जब ठंडी बहुत बढ़ गया तो उसके मुंह से वो मॉस गिर गया
और वो मॉस कहाँ गिरा? सीधा फायर के ऊपर में। Fire Oh में। my God. फायर पे। ठीक है, a large piece of green moss fell squarely on the little fire. अब जब वो फायर अच्छा। पे मॉस गिर गया तो वो हड़बड़ा गया, तो उसको क्या करना था? उसको सबको साइड करना था, मॉस को हटाना था। तो मॉस को हटाने के चक्कर में क्या हुआ, उसने लकड़ी को भी हटा दिया। जिस लकड़ी में आग लगा हुआ था ना, उसको भी साइड कर दिया। इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गिला। He tried to poke it with his finger, but his shivering frame made him poke too far and he disrupted the nucleus of the little fire. जो फायर का जो मेन जगह था उसको उसने साइड में कर दिया, स्कैटर कर दिया। The burning grasses and tiny twigs separating and scattering. अब अगर सब स्कैटर हो जाएगा तो क्या होगा? आग लगा रहेगा। बुझ जाएगा। हाँ, so he tried to poke them together again, but in spite of tenseness of the effort, his shivering got away with him, and the tubes were hopelessly scattered. वो उनको जितना करीब लाने का कोशिश कर रहा था, उसके शिवरिंग के कारण और उसके हड़बड़ी के कारण वो और साइड होने लगा। ठीक है, सब कुछ स्कैटर हो गया। The fire got scattered. और फिर क्या हुआ? आस्ते आस्ते each twig gushed a puff of smoke and went out. सबकी सब लकड़ियां बुझ गई। Oh my God, this is so sad. बेचारा इतना कोशिश किया, उसका हाथ भी जल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली द फायर वेंट आउट। किस किस को मजा आ रहा है और किस किस को मुझे। दुख लग रहा है? हाँ, तेरे को मजा आ रहा है? इधर वाह। पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है, इसके लिए दुख लग रहा है। अच्छा, हाँ, उसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। बेचारा उसकी बहुत हाँ, कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, ट्राइंग इज बेस्ट। आग भी जला लिया उसने, हाथ भी जल गया उसका, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? वो आग जो है वो बुझ गई। ठीक है, आगे रीड करो, क्या नाम है दिया? दिया, आर यू देयर? सर हाँ हाँ, श्योर, बोलो। श्योर, आई कांट हियर यू। सर उसका माइक या नेटवर्क में कुछ इशू लग रहा है। आई कांट हियर यू, श्योर। भाई माइक प्रॉब्लम है सर। टाइप दिया, रीड। हाँ, नाउ आई कैन हियर यू, टेल मी। सर ये पोक को क्या मीनिंग है? पोक मतलब उसको वो पोक करना, मतलब जो तुम लोग करते रहते ना, पोक करना सबको, जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर करना, माने किसी को इंटरप्ट करना। तो वो फायर को पोक कर रहा है, वो फायर को पास आने के चक्कर में उसको पोक कर रहा है कि वो पास आ जाए लकड़ी, पर वो जितना पोक कर रहा है उतना ही वो और माने बिखर जा रहा है, बिकॉज उसका फिंगर्स काम नहीं कर रहा है ना, माने पूरा फ्रिजिड हो गया है एकदम से। तो वो जितना कोशिश कर रहा है उसको पास आने के लिए, उतना स्कैटर हो जा रहा है वो। ठीक है, ओके दिया, रीड। Where is Dia? Yeah, your mic is off. She is not in the class. Okay. So who is going to read next? Vikram, read. The fire provider. The fire provider had failed as he looked apathetically about him. Apathetically Apathetically about whom? His eyes changed on the Chanced dog. on the dog. What happened? Chance मतलब shift मतलब नहीं, वो अचानक उसने, वो बेचारा बहुत दुखी था, पैथेटिकली वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसका नजर उसके कुत्ते पे पड़ा। ठीक है, वो तो आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। He is sitting across the ruins of the fire from him in the snow, making restless hunching movements, slightly lifting one foot and then the other. वो तो आराम से बैठा है, पीछे हंच करके बैठा हुआ है, कभी एक पैर उठा रहा है, कभी दूसरा पैर उठा रहा है, अपना वेट को चेंज कर रहा है, shifting its weight back and forth on them and wistful eagerness. और वो बहुत ईगर है। ईगर क्यों दिख रहा है डॉग उसको? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो मेरा आदमी है ये आग जला लेगा। ओके, ही इज एक्चुअली थिंकिंग कि ही विल लाइट अप द फायर। द साइट ऑफ द डॉग पुट अ वाइल्ड आइडिया इनटू हिज हेड। अब वो उसको डॉग को देखा, तो उसके अंदर डेस्परेशन सिचुएशन क्या हो गया कि अब उसके पास मैच स्टिक खत्म हो गया है। ठीक है, नाउ ही कैन नॉट लिट एनी फायर, और वो इतना ठंडा हो गया है, वो इतना कोल्ड हो गया है कि वो अपने फिंगर्स को भी मूव नहीं कर पा रहा। तो बचेगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसके दिमाग में एक विकेट थॉट आता है। ठीक है, जब वो डॉग को दिखता है उसके दिमाग में एक विकेट थॉट आ रहा है। यस, दिया, आर यू देयर? Yes, sir. Sir, मेरी मेड Read from वाईफाई here. ऑफ कर दीजिए। हाँ। Read from here. The sight of the dog. The sight of the dog put a wild idea into his head. He remembered the tale of the man caught in a blizzard.
who killed a steer and crawled inside the carcass and so was saved. He would kill the dog and bury his hands in the warm body until the numbness went out of them. Then he could build another fire. Okay, now what is this? What is this idea which is having in his mind? ये bizarre idea क्या आ रहा है उसको? शौर्य, can anybody tell me what is the idea now? What is the plan of Sir, action? वो तो सर आइडिया आ डॉग रहा को है मार के कि उसका फर में वो हाथ गरम कर लेगा, देन जब हाथ में सेंस आ जाएगा तो वो अनदर फायर फायर तो मतलब और एक फायर जला लेगा। ओके, तो उसका दिमाग में आइडिया ये आया है कि वो किल कर देगा डॉग को और डॉग का जो स्पर है उसके अंदर अपना हाथ घुसा लेगा, ठीक है, उसके स्किन के अंदर में, क्योंकि बहुत गर्म होता है, और वो जब थोड़ा वार्म हो जाएगा देन ही कैन ट्राई एंड बिल्ड अनदर फायर। ठीक है, सर आपसे एक अब वो सवाल है अपने, सर हाँ हाँ, सर आपने बोला कि उसके मतलब उसको मार के उसमें हाथ डाल के गरम कर लेगा अपने हाथों को, लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा कि उसकी मैच ट्रिक्स ही सब खत्म हो गई 70 की 7, तो फिर गरम होने के बाद ये क्या करेगा वो? नहीं नहीं, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 70 है, हो सकता है उसका और भी हो। वहां पर जो मैस्टिक था वो गिर गया, वी आर नॉट गिवन अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। उस टाइम जितनी मैस्टिक थी वो उसकी गिर गई थी, ठीक है, तो वहां पे ऐसा लिखा बंच ऑफ मैस्टिक, हो सकता है उसके बाद और भी हो, ही मस्ट बी हैविंग अनदर वे। इसमें कोई राइटर कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला, ठीक है, अच्छा ठीक है। मे बी ही हैज डिफरेंट आइडियाज, कैसे भी जो भी करेगा, ठीक है। चलो, तो अब वो क्या कर रहा है, दिया रीड। He spoke to the dog, calling it to him, but in his voice was a strange note of fear that frightened the animal, who had never known the man to speak in such a way before. Something was the matter, and its suspicious nature sensed danger. It knew not what danger, but somewhere, somehow, in its brain arose an apprehension of the man. ओके वेट, यहाँ तक क्या मतलब हुआ इसका? अब वो जो आदमी है वो अपने डॉग को बुला रहा है, ठीक है, लेकिन आज उसका आवाज थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, उसके आवाज में एक डर है, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस। वो क्या बोल रहा है, आ इधर आ डॉग इधर इधर आ। वो डॉग को डेस्परेटली बुला रहा है और वो डरा हुआ भी है कि वो मर जाएगा अगर डॉग नहीं आएगा। डॉग बोल रहा है मेरे मालिक को आज क्या हो गया यार, ये आदमी जो बिना गाली दिए बात नहीं करता, बिना स्वेर के बात नहीं करता है, बिना मुझे 4 बात बोले बात नहीं करता, आज इतने प्यार से डरा हुआ अलग से बुला रहा है। तो डॉग को सस्पेंशन हो जाता है, सस्पिशन हो जाता है, बोला ये भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज ये मेरा कुछ कांड करने वाला है, ये आज सही से बात नहीं कर रहा है। तो डॉग बोला ना मैं नहीं आऊंगा ना, क्योंकि उसके आवाज में जो है एक डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। एंड एनिमल्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उसको समझ में आ जाता है दिस इज नॉट द नॉर्मल वे माय ओनर कॉल्स मी, so he is very suspicious and he doesn't want to come near to the man। समझ में आ गया बात को? चलो आगे। It flattened its ears down at the sound of the man's voice, and its restless, hunching movements and the liftings and shiftings of its forefeet became more pronounced. But it would not come to the man. He got on his hands and knees and crawled towards the dog. This unusual posture again excited a suspicion, and the animal sidled mincingly away. ओके, अब क्या नाम है, वो आदमी उसको बुला रहा है, डॉग जा नहीं रहा है, वो और ज्यादा नर्वस है डॉग, वो कभी इधर मूव कर रहा है उधर मूव कर रहा है, कभी एक लाख ये वाला 4 फीट आगे कर रहा है, कभी हाइंड लेग आगे कर रहा है। तो वो आदमी जब देखा डॉग नहीं आ रहा है तो वो आदमी के पास खुद जाने लगा, लाइक क्रॉल करके, जैसे बच्चे जाते हैं ना वैसे वो डॉग के पास जाने लगा उसको पकड़ने के लिए। तो डॉग और सस्पिशियस हो गया, बोला अरे ये मेरा मालिक ऐसा तो कभी नहीं था, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? तो डॉग वहां से और भागने लगा, वो नहीं चाहता है कि उसका मालिक उसको पकड़े, बिकॉज ही इज सेंसिंग फियर, ही इज सेंसिंग डेंजर। ओके, चलो यहां से रीड करो। दिया, व्हाट हैपेंड? फिर से माइक बंद हो गई। तब मैं रीड कर दूं? हाँ रीड। Okay, the man sat up in the snow for a moment and struggled for calmness. Then he pulled on his mittens by means of his teeth and got upon his feet. He glanced down at first in order to assure himself that he was really standing up, for the absence of sensation in his feet left him unrelated to the earth. बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे उसने देखा जब डॉग नहीं आ रहा है
तो उसने जैसे तैसे अपना मिटन्स वापस से लगाया, अपने हाथ में पहना, ठीक है, और वो खड़ा हो गया। लेकिन खड़ा होके ना उसको समझ में नहीं आ रहा वो खड़ा हो पाया कि नहीं। तो पहले आंखों से देखा कि हाँ सही में खड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उसको सेंसेशन ही नहीं हो रहा नीचे। माने वो अर्थ पे जो खड़ा है, और माने उसका बॉडी में और अर्थ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सेंसेशन। तो वो अभी ना सेंसेशन से पता नहीं अगर उसको कि वो खड़ा है कि नहीं खड़ा है, उसको आंखों से देख के बिलीव करना पड़ रहा है कि वो खड़ा है। ओके, बिकॉज अर्थ में और उसका बॉडी में कोई रिलेशन ही नहीं बचा। समझ में आ रहा बात को? क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया उसका भी। चलो Yes, आगे, sir. यहाँ से हिज इरेक्ट पोजीशन। His erect position in itself started to drive the webs of suspicious from the dog's mind. And when he spoke peremptorily with the sound of प्रिएम्टोरिली, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ माने जब वो खड़ा हो गया अपनी पोजीशन में, तो डॉग को लगा, जैसे वो तो नॉर्मली खड़ा ही रहता था, जब वो क्रॉल करके आ रहा था तो डॉग को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन जब वो अपनी पोजीशन में खड़ा हो गया तो उसको ऐसा लगा कि यार अभी थोड़ा नॉर्मल सी आया है। उसके बाद वो क्या किया, जो नॉर्मल वे, माने जिस तरह से उसने डॉग को बुलाता ना, माने जिस प्रकार से उसका आदत था अपना डॉग को बुलाने का, वेब फ्लैशेस का, माने डांट के बुलाने का जो आदत था, जैसे ही उसने डॉग को डांट के बुलाया, माने नॉट इन द अदर वे, जैसे नॉर्मल वे में बुलाता था, डॉग को लगा रहे अब तो ये नॉर्मल हो गया, मेरे को नहीं मारेगा, तो वो वापस से डॉग उसके पास में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? माने जब वो उसको प्यार से बुला रहा था कि आ इधर आ, तो डॉग को सस्पिशन हुआ, है ना। जैसे बोलते हैं ना, जब तक तुम लोग को डांटेंगे नहीं तुम लोग पढ़ोगे नहीं। प्यार से बोलने से पढ़ते हो तुम लोग? नहीं पढ़ते। लेकिन जब टीचर अपना मूड दिखा, अरे अब सर सीरियस हो गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो